Hello everyone, I am Chandan Sharma and I have secured All India Rank 3 in Engineering Services examination conducted by UPSC in 2019. So now we are going to cover conduction heat transfer. So in this first we will integrate the Fourier law of conduction. So as we know Fourier law, in the last lecture I have already discussed that Fourier law heat transfer rate is directly proportional to the temperature gradient and area. If you combine it, you will get minus ka dt by dx, right? So this is in differential form. You can integrate it. So we will integrate it. So the case 1, so from here we will start with the case 1. Case 1 is for slab, conduction through a slab. So there is a slab. Okay, this is the front view, and from here certain amount of heat is getting transferred. This is a temperature T1 and this is a temperature T2. T1 is greater than T2. Okay, so and the thermal conductivity of the material is K and its thickness is B. So these are the given, and from here we will take X. This is the value of X is 0 at this is, and at here it will equals to B. Okay, X equals to 0 and X equals to B. So these are the things. So we can see that we have to integrate it. So before integration we have to first put some assumptions, because assumptions are very much important in these conditions. First one, steady state heat transfer. Steady state heat transfer means temperature is not a function of time. Steady means it will remain constant. For steady state a source and a sink is required. That is also you should know. Means there is a source, in this case this part is source and this part is sink, right? And the temperature of source and sinks are not varying. Because of that the temperatures remain constant. So steady state heat transfer condition. Second, one dimensional heat conduction. We are just talking about one dimensional heat conduction. So T is just a function of X and not a YZ. In actual condition temperature will move in every direction, or the energy will move in every direction, but we are just studying in one dimension. Third assumption is K is constant. So as we have seen that K may vary with increase in temperature or decrease in temperature, but in these conditions we assume that K is constant. Okay, so these are the assumptions. You need to understand and you need to remember these things. Okay, because in some questions K may vary, so वहाँ पर इंटीग्रेशन का तरीका डिफरेंट होगा थोड़ा. So we will come to that. Before that हम ये करते हैं, ठीक है. So now we know that Q equals to minus Ka dt by dx. So इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ x equals to 0 to b q dot dx equals to integration of t1 to t2 minus Ka dt, right? So at x equals to 0 हमें पता है t equals to t1, at x equals to b t equals to t2. So यहाँ से हमें एक चीज़ और पता है कि q is not a function of x. मीन्स q जो x इक्वल्स टू 0 पे है वही x इक्वल्स टू b पे है, राइट? हीट ट्रांसफर यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, राइट? जो बॉडी है जितना हीट उसमें आ रहा है उतना हीट बाहर जा रहा है, ठीक है, दोनों सरफेस से. सो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा q x इक्वल्स टू माइनस के ए T2 minus T1. So you can write it like Q equals to Ka T1 minus T2. Okay, here T2 minus T1, here T1 minus T2 upon X. So this is your integration, and this will be in watt, right? Because this is rate of heat transfer through slab. So this is slab. If I divide this Q upon area, so it will get K T1 minus T2 and X.
and this term is known as heat flux. Okay, heat flux, and its unit is watt per meter square. So in some question, if area is not given, then you have to find heat flux. Okay, so now there is a concept or theory that is known as electrical analogy. Okay, so electrical analogy, you know that if from point A to B current is getting transferred through this resistance, then we can write that what is V equals to IR, right? We know that. So यहाँ पर जो चीज़ है V और डेल्टा V, द सेम थिंग अगर मैं इसमें देखूँ, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है, और इसको मैं R थर्मल बोलूँ, सो आई कैन राइट इट एज, यहाँ पर R क्या है, व्हाट इज R, डेल्टा V बाई आई. मैं यहाँ पर जो इसमें रिलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इसमें करंट पास क्यों हो रहा है, वाई करंट इज फ्लोइंग, बिकॉज ऑफ potential difference, right? And what is flowing? I current is flowing here. Why the, now in the thermal case, why the heat transfer taking place? Because of there is a difference in temperature and flow क्या हो रहा है, heat हो रहा है. So उस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा. ओके, पहले मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ, के ए डेल्टा टी बाई एक्स, ये होता है हमारा. ओके, सो यहाँ पर जब मैं लिखूँगा कि फ्लो क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए आर क्या होता है हमारा, डेल्टा वी बाई आई. अगर एनालॉजी के हिसाब से देखो तो यहाँ पर होगा डेल्टा टी बाई क्यू. अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा एक्स बाई के ए इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई क्यू. ओके, सो ये चीज़ जो होती है डेल्टा टी बाई क्यू इक्वल्स टू एक्स बाई के ए, इसको हम थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं. दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस. ओके, एंड इट्स यूनिट विल बी सिंपल, डेल्टा टी की यूनिट केल्विन होगी एंड क्यू की यूनिट वॉट होगी, सो केल्विन पर वॉट. सो दिस इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस. अब इसका यूज कहाँ पर है देखते हैं. बहुत सिंपल है. अगर आपको ऐसे बहुत सारे वॉल्स दे दी जाए, okay, this is K1, this is K2, this is K3, this is K4, this is K5. These are thermal conductivity. Now B1, B2, B3, B4 and B5, this is the width of these slab, and this is temperature T1 and this is temperature T5. So अगर Q find करना है, so Q will be, we have to write it in this way, see T1 minus T3 अपॉन, सिमिलरली जैसे हम लिखते हैं V इक्वल्स टू आई आर, सो I इक्वल्स टू V बाई आर. सो अगर सीरीज में है तो R को हम क्या करते हैं, R सीरीज में प्लस हो जाता है, रेजिस्टेंस विल गेटिंग ऐड. तो यहाँ पर होगा B1 अपॉन K1 A1 प्लस B2 अपॉन K2 A2 प्लस B3 अपॉन K3 A3 अप टू जितने होंगे. सो इस टाइप से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमको डायरेक्टली अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर इसका ये यूज़ है. ओके, अब यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन और आता है. सो ये न्यूमेरिकल का पार्ट है. अगर आपको K1 की वैल्यू दी जाए, मान लीजिए 5 है, इसकी 3 है, इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है, एंड टेम्परेचर की वैल्यू 50 है T1 की, T2 की वैल्यू 10 है. सो ये आप जस्ट इसमें वैल्यू पुट कीजिए एंड सॉल्व इट, वो आपका आंसर होगा. ओके, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपने पहले भी पढ़ रखी है. पर यहाँ पर एक जो क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो इस टाइप से आता है. देयर इज़ अ टू वॉल, और वो इस टाइप से डायग्राम बना देंगे. ओके, दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3, दिस इज K1 एंड दिस इज K2, एंड द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 इज लेस देन K2, K1 इक्वल्स टू K2, or none of the above. So as we have discussed, K is the ability of the material to transfer the energy, heat energy. So यहाँ पर जो जितने अच्छे से एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस उतना कम होना चाहिए. इफ़ K1 इज़ ग्रेटर देन K2, इफ़
आंसर नहीं, इफ, देन जो डेल्टा टी है ये ए वाले में वो कम होना चाहिए डेल्टा टी बी वाले में. ऑफ कोर्स डेल्टा टी विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन दिस, अगर हम दोनों का विड्थ सेम कर दे तब. ओके, अगर दोनों का विड्थ सेम है तो डेल्टा टी इन ए शुड बी लेस देन डेल्टा टी इन बी. बट इफ़ यू सी डेल्टा टी इन ए इज़ ग्रेटर देन डेल्टा टी इन बी, क्योंकि ये जो स्लोप है ये शो कर रहा है कि कितना टेम्परेचर डाउन हुआ है. ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन डायरेक्टली से दैट K1 इज लेस देन K2. तो ये जो है क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो ये आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको अगर थ्योरेटिकली प्रूव करना चाहें तो Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. नाउ एरिया इज सेम, सो हम एरिया को भूल जाते हैं. नाउ डी टी अपॉन डी एक्स इज ग्रेडियंट, सो नाउ यू कैन सी द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट इन ए इज मोर देन ग्रेडियंट इन बी, और Q तो सेम ही रहेगा. जो यहाँ से Q पास हो रहा है वही Q यहाँ से पास होगा और वही Q यहाँ बाहर आएगा. सो Q रिमेन्स सेम. डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज ग्रेटर फॉर ए, राइट. डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेल्टा टी ऑफ डेल्टा एक्स इन बी, देयरफॉर के ए इज लेस देन के बी. ये हो गया न्यूमेरिकल प्रूफ, ये हो गया थ्योरेटिकल प्रूफ. सो यहाँ पर यूनिट का भी ध्यान देना है आपको. सो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ. एक क्वेश्चन आया ऐसा है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, सो हेयर इज Q, दिस इज K, दिस इज K, एंड जो इसका K है उसको हम P मान लेते हैं. ओके, दैट इज अननोन, दैट यू हैव टू फाइंड. नाउ दिस इज 20 mm, this is 20 mm and this is 1 mm. Okay, so here the value of Q is given 10 into 10 to the power 3 watt per meter square, means this is flux, this is Q by A is given. Okay, so now you have to find, and temperature is also given, both temperatures are given T1 minus T2. Okay, and T1 minus T2 is equals to 140 Kelvin, or in degree Celsius, it doesn't matter. So you have to find the value of P, or what is the resistance of the middle slab. So directly यहाँ पर पता है आपको Q by A equals to T1 minus T2 upon B1 upon K1 plus B2 by K2 plus B3 by K3. So you have you have to find the thermal conductivity, right? P is the thermal conductivity, this is thermal conductivity. So you have to find this K2, and you know this part, you know this part, you know this part, and you know this part, you know B2 also. So you can find K2, right? So this is a very simple question. The answer is 0.1 watt per meter Kelvin. ये आप सॉल्व कर लीजिएगा. ओके, एवरीथिंग इज गिवन. सो ये काफ़ी बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ. एक थोड़ा छोटा सा थ्योरेटिकल चीज़ है जो मैं मिस कर गया था. सो वी विल ऐड दैट इज़ बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी. This part is exclusively for engineering services. Okay, so अगर आप सिर्फ गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं so आप थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं, लाइटली ले सकते हैं इस चीज़ को. सो थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे फर्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, दैट इज K ऑफ ए मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन विच आर द थिंग्स दैट इट डिपेंड्स अपॉन. सो फर्स्ट वन, material structure that we have talked about, right? If material structure is good like diamond, then thermal conductivity is very high. Then density, in the density case we can see that solid, liquid and gas, how K vary. Then moisture content. Okay, if moisture content varies then also thermal conductivity varies. ये आप बहुत अच्छा एक एग्जांपल दे सकते हैं. If you take a dry air and you want to ionize it, and if you take a moist air and then you want to transfer the current through that, or heat through that, so different होगा. ठीक है, यहाँ पर हम heat की बात करें, not current. So take a box, in that just put dry air and take a moisture in that and now try to transfer the heat. Okay, so ये जो condition आती है इसके अंदर different आती है. Okay, now the fourth one is pressure and temperature. Okay, in gas if you change the pressure then its density will get changed, and as you change the temperature its density get changed for the gaseous and liquid. So वहाँ पर thermal conductivity change होती है.
सो ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर एक चीज़ डिपेंड करती है। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर के साथ के कैसे वेरी करता है, तो उसका एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, दिस साइन इज फॉर इंक्रीज, के डिक्रीजेज, सॉरी जस्ट वेट, पहले बताना तो पड़ेगा किस लिए, फॉर सॉलिड और मेटल। ओके, as temperature increases, K decreases. We have already talked about that, but there is an exception, aluminium and uranium. So try to remember this. इसके deep में जाने की जरूरत नहीं है, just remember it. Okay, in liquid, as temperature increases, K decreases, except in water. Okay, water is having many exceptions, like its density is maximum at 4 degrees Celsius. Okay, in solid form its density is less than in the liquid form. So ये सब चीज़ें एक्सेप्शन है. In gaseous form, as temperature increases, K increases, and here K is directly proportional to mean free path. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आता है. एंड मीन फ्री पाथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. सो एक बार पूछा जा चुका है हाउ के वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द मॉलिक्यूलर मास, सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, और इसमें वो होता है बाल की खाल खींचने वाली चीज़ नहीं है ये, जस्ट आपको रिमेम्बर या 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा. ओके, सो नाउ हमने थर्मल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा, देन हमने न्यूमेरिकल्स देखे. नाउ थर्मल रेजिस्टेंस इन कन्वेक्शन देखते हैं. कन्वेक्शन, ओके, सो देर इज अ प्लेट, देर इज अ सरफेस. ओके, this is hot plate TW, this is infinity, and there is a heat transfer Q convection. How we write it? We write it as HATW minus T infinity, and as we know our thermal is delta T upon Q, so we can write it at 1 upon H by A, 1 upon HA. ठीक है, and here units is Kelvin by watt, unit will remain same. ओके, सो अब इसी कंसेप्ट पे एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे. देर इज अ स्लैब, राइट, K1 K2, दिस इज अ टेम्परेचर T1 T2 एंड T3. ओके, हियर heat transfer is Q, right, here then this is TG, hot side, जैसे फर्नेस में होता है, दिस इज कोल्ड साइड, दिस इज T infinity, and here the conductivity, coefficient of conductivity is H1, here H2, right. so इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे, अगर मैं इसको सर्किट फॉर्म में रखूँ तो सर्किट फॉर्म में 1, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, एक रेजिस्टेंस इसका होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा, सो 4 रेजिस्टेंस, राइट, 2 3 एंड 4. सो यहाँ पर TG होगा, T1 T2 T3 एंड T infinity. ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम थर्मल रेजिस्टेंस 1 अपॉन HA, A रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरीवन, B1 इसका अगर B1 है, इसका B2, सो B1 बाय K1A, B2 बाय K2A, एंड यहाँ पर 1 अपॉन H2A. ओके, सो अगर हम इनको लिखना चाहें, Q कितना ट्रांसफर हो रहा है, Q इक्वल्स टू TG माइनस T infinity अपॉन 1 बाई H1A प्लस B1 बाय K1A प्लस B2 बाय K2A प्लस 1 अपॉन H2A, राइट, और ये वॉट में आ जाएगा. सिंपल. तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं. इसमें कुछ Q दे दिया जाएगा, यहाँ पर B1 गिवन नहीं होगा, सो यू हैव टू फाइंड B1. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग्स. ओके, अब इसी से एक कंसेप्ट आता है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का. ओके, सो द कंसेप्ट इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट.
सो जब भी हम Q लिखते हैं, Q इक्वल्स टू हम लिखते हैं U A डेल्टा T, ओके, वेयर you know what is Q, you know what is A, you know what is delta T. Here U is overall heat transfer coefficient. ठीक है, सो इट इज अ पैरामीटर विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू अ सिंगल एंटिटी. जैसे हमने ये लास्ट वाले में कितने हीट रेजिस्टेंस देखे, 1 2 3 एंड 4. सो यहाँ पर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि द ओवरऑल और इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या है. जैसे थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर K1 है, K2 है. ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात करूँ तो H1 है एंड H2 है, बट ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वी कैन नॉट से दैट, ओके, कि ये है मतलब इनमें से कौन सा है. सो हम इसको कंपेयर करते हैं. हाउ वी कंपेयर इट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखते हैं, जो Q/A हमने लिखा वो है Tg माइनस टी इन्फिनिटी 1/H1 प्लस B1/K1 प्लस B2/K2 प्लस 1/H2, राइट. If we compare it with this one, Q/A delta T upon 1/U. If we compare this equation 1 and this equation 2, so we can write it as 1/U equals to 1/H1 plus B1/K1 plus B2/K2 plus 1/H2. So from here you can find U, that is known as the overall heat transfer coefficient. Its units is watt. If you say the unit is watt per meter square Kelvin, similar as H, that is also a coefficient heat transfer coefficient for convection. Okay, so ये चीज़ें हैं जो आपको बताएंगी, ठीक है. जैसे U जो बताएगा ये ओवरऑल सर्किट की बात कर रहा है. यहाँ पर इस पूरे जो सर्किट में है, अगर मैं इफेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की बात करूँ तो क्या होगा, तो वो U है. ओके, सो इसके ऊपर प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फॉलो द मेथड, ओके, जो मैंने मेथड आपको बताया. नाउ we will in the next lecture we will talk about the radial conduction and heat transfer.